Hello dear students. Yesterday we were reading about chapter 4 Rats and the Elephants. Yesterday we did question answers also of this that chapter, and today we will start our new chapter number 4. School is a temple. School is a temple. Temple means, do you know? मंदिर. Temple means मंदिर. Do you like wearing clean or dirty clothes? आपको कैसे कपड़े पहनना पसंद है? मैले कपड़े पहनना पसंद है, गंदे कपड़े पहनना पसंद है, या फिर आपको धुले हुए साफ सुथरे कपड़े पहनना पसंद है? सेकेंड थिंग, डू यू लाइक सिटिंग इन अ क्लीन रूम और अ डर्टी रूम? आप एक क्लीन रूम में बैठना पसंद करते हैं या फिर एक डर्टी रूम में भी आप बैठे रह सकते हैं? इफ़ यू फाइंड देयर इज सम रबिश वी कैन से कचरा, वेस्ट पेपर्स, wrappers or candies like that laying on the floor around you, like you are sitting somewhere and around you the garbage rubbish is kept. So what would you do? Have you ever think about these things? Wherever you see the rubbish, garbage, you should keep you should throw it in dustbin and make the clean that area. So now we are going to start this chapter number 4. School is temple. स्कूल विद्यालय हमारे लिए क्या होता है? हमारे मंदिर जैसा होता है. We do worships in the school. हम स्कूल में वर्शिप भी करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं. Each and every good habits, good things we used to learn in the school. हम स्कूल में हर एक अच्छी चीज़ सीखते हैं. We get blessings also with our teachers, respective teachers. Always they help us to move forward in your life. How to go ahead till your goal. Always they guide us to reach to hard work and to decide a goal. So school is temple for us. See a classroom. There is a drama, like scene of a classroom. Students are sitting. All the students are sitting. Raju and the class monitor. There is a boy named Raju. He is the class teacher, class monitor. Notice some bites of paper laying on the floor near Manjeet. There is another boy named Manjeet. He is sitting on his seat or nearby Manjeet. Some papers, bites of papers यानी कुछ पेपर के टुकड़े laying on the floor near the मंजीत की चेयर के पास में नीचे कुछ पेपर के टुकड़े गिरे हुए रहते हैं. राजू says, Manjeet, who has thrown these bites of papers in the class? मंजीत, ये पेपर के टुकड़े क्लास में किसने फेंके हैं? थ्रोन, किसने फेंके हैं? मंजीत. I don't know राजू, मुझे नहीं पता. Maybe some boy has thrown these papers. हो सकता है किसी ने फेंके हो, बट मुझे नहीं पता. राजू, no, you are telling a lie. नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो.
When I went out of the class, जब मैं क्लास से बाहर गया था, you were writing on a paper. I am sure these are the bites of that same paper. Then Raju said that Manjeet, when I was going out, जब मैं बाहर जा रहा था, at that time I have seen, मैंने देखा, you were writing on a paper, तुम किसी एक पेपर पे कुछ लिख रहे थे, and these papers are the same, यानी ये वही पेपर है जिस पे आप कुछ लिख रहे थे। मंजीत, आई डिडंट थ्रो देम हियर, मैंने उनको यहाँ नहीं फेंका। आई थ्रू देम इन द डस्टबिन, मैंने तो उनको डस्टबिन में फेंका। राजू, लाउडली, जोर से, नो नो नो, यू थ्रू देम हियर, तुमने ही इन्हें यहाँ फेंका है। नाउ क्लीन द फ्लोर, अब तुम इसको साफ करो। मंजीत, व्हेन I didn't throw these bites of papers, why should I clean them? जब मैंने ये पेपर यहाँ फेंके ही नहीं है तो मैंने क्लीन क्यों करूँ? said मंजीत। Both start quarreling. Quarreling का मतलब होता है झगड़ना। Quarreling का मीन्स होता है झगड़ना। क्वेरलिंग, झगड़ना। बोथ मंजीत एंड राजू स्टार्टेड टू फाइट टू क्वेरलिंग। जस्ट देन, तभी द क्लास टीचर एंटर्स, और क्लास टीचर क्लास में आता है। टीचर, बॉयज, व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइज, आवाज। देन क्लास टीचर आस्क्ड इन द क्लास कि बच्चों आप इतनी आवाज़ क्यों कर रहे हो? बॉयज़, मंजीत, सर, राजू इज़ ब्लेमिंग, ब्लेम का मतलब होता है ब्लेम करना, वी कैन से सेइंग लाई, झूठ बोलना। सो मंजीत, सर, राजू इज़ ब्लेमिंग मी, ही सेज दैट आई हैव थ्रोन दीज पीसेस ऑफ पेपर हियर। Then Manjeet complained. Manjeet complains to teacher, class teacher, that sir, Raju is saying that these pieces of papers, यानी pieces का means टुकड़ा, bite means भी टुकड़ा होता है और pieces means भी टुकड़ा। पीसीस एंड वाइट दोनों का मीन्स होता है टुकड़ा। तो ही सेज दैट राजू इज ब्लेमिंग मी दैट आई हैव थ्रोन दिस पेपर्स पीसेस ऑफ पेपर्स हियर। ही इज टेलिंग मी टू क्लीन द फ्लोर ऑल्सो, इट्स नॉट माई जॉब। देन ही सेड कि ये मेरे को कह रहा है कि तुम ये क्लासरूम है वो क्लीन करो, ये मेरा काम नहीं है, इट्स नॉट माई जॉब, ये मेरा काम नहीं है। ही वॉन्ट्स टू से कि मैं यहाँ पढ़ने आता हूँ, कोई सफाई करने नहीं आता। ओके, सो हिज टोन वॉज टोटली चेंज्ड एंड इट वॉज नॉट गुड। सो टीचर सेड, बॉयज, एट फर्स्ट बी क्वाइट एंड लिसन टू मी पेशेंटली। एक बार आप सारे के सारे साइलेंट हो जाइए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। What the teacher will tell them, do you know? Do you know what the teacher will tell them? Teacher, sorry, all the students, boys, at first be quiet and listen to me patiently. Tell me, if your body becomes dirty, tell me, if your body becomes dirty, who cleans it? इसको साफ कौन करता है? सोचो, आपके हाथ, आपके पैर या आपका मुंह गंदा हो जाए तो उसे कौन क्लीन करता है? All the students, we do it ourselves, sir. हम इसे अपने आप साफ करते हैं सर। टीचर, इफ़ योर रूम इज़ डर्टी, अगर आपका रूम गंदा हो गया,
इज़ इट ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट, क्या ये सिर्फ आपकी मम्मा की ड्यूटी है, उन्हीं का काम है उसको साफ करना। डोंट यू क्लीन योर रूम, तुम अपना रूम साफ नहीं कर सकते। राजू, यस सर आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ। देन राजू सेज, राजू बोलते हैं कि यस सर मैं अपना रूम खुद साफ करता हूँ। टीचर, गुड राजू। नेहा, सर आई ऑल्सो स्वीप माई रूम, मैं भी अपने रूम की सफाई करती हूँ। आई फेच वाटर विद माई मदर, यू नो व्हाट फेच। लाना, have you listen, bring, bring means lana, fetch means also lana. There is a little difference between both the word. Bring, if somebody is coming from out, so while coming, if he is bringing, she is bringing something, that is called bring. Like if we are calling to someone that bring pizza for me, bring tea for me, bring chocolate for me. So when he or she will come, then while coming they will bring. But if you want to send someone from here to take that thing and for come back, then we will say we use fetch. Like if I will say one student, just Raju, go and fetch the chalk piece for me. Like I am writing on the board and I need chalk piece, then I will send one student from here. If I am sending someone from here, that person will go from here and he will come, she will come back on the same place with the thing. That for such kind of situation, in such kind of sentence we use word fetch. अगर हम कोई चीज़ आते हुए लेके आते हैं तो हम बोलते हैं bring, और कोई चीज़ लेने के लिए हम यहाँ से जाएंगे और लेकर वापस वही जगह पे आएंगे, that means we will use fetch. तो नेहा बोलती है कि आई ऑल्सो गो विद माई ममा टू फेच वाटर, पानी लाने के लिए मैं मम्मा के साथ जाती हूँ। आई फेच वाटर विद माई मदर फ्रॉम अ वेल, आई हेल्प हर इन द किचन ऑल्सो, मैं मम्मा की हेल्प करती हूँ किचन में भी। एंड बिट्टू, सो आई ऑल्सो हेल्प माई फादर एट आवर शॉप। बिट्टू बोलता है कि मैं भी अपने पापा की हेल्प करता हूँ शॉप पे। टीचर, वेरी गुड माई चिल्ड्रेन, बहुत अच्छा मेरे बच्चों। यानी हियर द टीचर ही आस्क्ड द स्टूडेंट्स दैट इफ़ योर बॉडी बिकेम डर्टी, अगर आप मान लो आपकी बॉडी डर्टी हो गई, गंदी हो गई, धूल मिट्टी गिर गई, देन हु विल क्लीन इट, इसे कौन क्लीन करेगा? Then all the students said, obviously sir, we will do on self. Then the teacher told them that if your room become dirty, then is it only your mother's duty to clean that room? Don't you clean your room? क्या आप अपना रूम साफ नहीं कर सकते? Then same here in the school. This is your classroom, and it's of yours, not only one Raju's. ये सिर्फ राजू का रूम नहीं है, ये आप सबका है। जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास में बैठे हैं, ये रूम उन सबका है। सो इट्स योर ऑल्स ड्यूटी टू मेक इट क्लीन, ये आप सबकी ड्यूटी है इस रूम को क्लीन करने की। सो रिमेनिंग चैप्टर वी विल रीड in next upcoming video. Thank you.